Hello friends, this is Team Super Simplified and we are here with another video in Super Simplified series, and today's topic is Arunachal Pradesh crisis. So first of all, what crisis are we talking about? We are talking about the constitutional crisis which was recently seen in Arunachal Pradesh, where president's rule was imposed for quite some time. And that is the topic of discussion for us today. Before getting started, let's have a look at what are the various aspects we are going to cover in this lecture. First of all, we will see what exactly has happened till now, what is the timeline of the events in order to understand the background. Then we will look at the constitutional angle. In constitutional angle, we will discuss basically two dimensions. First one of them is the president's rule. Here we will try to address some important questions like what exactly is president's rule? Who has the authority to impose it? What is the process of imposing? What is the duration of it? What are the various consequences on the different stakeholders who are involved in this? And then why is it so controversial? Then the second dimension would be the 10th schedule of the constitution, which talks about tentative action. And if time permits, we will also discuss about Arunachal Pradesh as a state in general, where we will discuss its history, geography, economy, polity, and some other issues related to it, like the Tawang Monastery issue, McMahon Line, the boundary dispute with China, and all those things. Okay, so let's get started. Before starting, let's set the context. तो देख लेते हैं कि इसका recent context क्या है. Why is it in news and what are the recent developments? Recently there was a news that president's rule is lifted in Arunachal Pradesh. तो पहले प्रेसिडेंट रूल और अरुणाचल प्रदेश का क्या नाता है वो समझ लेते हैं. तो नाता ये है कि 26 जनवरी 2016 on the Republic Day, President's rule was imposed on Arunachal Pradesh, and 19th Feb 2016 it was revoked. So it was in force for around, we can say, roughly 1 month. 1 month. Okay. And what is the current situation? The situation is something like this. A new government has already taken charge in the state under the leadership of Calico Pull, and he has replaced, he's the new chief minister of the state, and he has replaced Nabam Tuki. Nabam Tuki, who was the chief minister before this crisis unfolded. Then oath administered by JP Rajkova, who is the governor. Governor ही chief minister को oath दिलाता है, right? As you have seen in the first slide. 66, there are 60 seats in the state legislature. There are 60 seats in the state legislature. तो आपको अगर सरकार फॉर्म करनी है तो आपको कितनी सीट चाहिए? You need 31 seats to form government, right? Congress was already having more than 31 seats. But then what happened? 18 MLAs out of Congress, they were having some grievances in the party. They were not happy in the party, so they came out of the party and they tried to form a coalition with the opposition. 11 BJP MLAs and 2 independents. Now this totals to 31. Now these guys are in power because they are in majority. 31 सीट्स चाहिए आपको सरकार फॉर्म करने के लिए, उनके पास 31 सीट्स हैं. एंड कैलिको पोल इज देयर लीडर, जो कि अभी करंटली चीफ मिनिस्टर हैं. तो स्टेट में तख्ता पलट हो गया है लिटरली अगर बोला जाए तो. दिस इज व्हाट हैज़ हैपेंड. ठीक है. Another thing why we are making this video is because one of our viewers, Pratik Vaikar, had requested to cover this topic from UPSC perspective, and that is what we are doing here. If you also feel that some topics are good for discussion, then you can suggest us. We will try to take that into account. Then timeline of the events, कब कहाँ कैसे क्या हुआ. तो 26 जनवरी 2016 एज वी सेड प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज. उसके बाद में कांग्रेस ने हाहाकार मचा दिया कि भाई दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये ठीक नहीं है, ये है वो है. And the matter went to Supreme Court. So Congress alleged that there is a BJP government at the center and the state is ruled by Congress. So BJP is basically trying to destabilize the state. Okay, and this is unconstitutional. तो Supreme Court ने भी उसको entertain किया plea को. They said कि okay, let's see what is the matter. And then they sought governor's report. See, जो president's rule होता है वो governor's report के basis पे होता है. तो what actually happens? Governor sends a report to the president stating the reasons why he feels the constitutional machinery of the state is not functional. He may state some law and order problem. He may say कि भाई law and order situation तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, सरकार के कंट्रोल में है ही नहीं, और the elected representatives the states of the state are not able to carry out their duties efficiently, or some other reason. So he has to justify the center intervention in the state. तो वो एक रिपोर्ट बना के भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास में. तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट तलब की कि लाइए ज़रा दिखाइए रिपोर्ट में क्या लिखा है, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस. दे आस्क्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द गवर्नर, बट देन सेंटर जम्प्ड इन बिटवीन. इट सेड कि नहीं, ये तो गलत है बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द गवर्नर. कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही बोला गया है कि गवर्नर टेक्स दिस डिसीजन इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी and he is not answerable to any court of law. So how can you question him that he has suggested in a particular manner? You cannot question him. Supreme Court realized its mistake
and then it paved way for the formation of new government, and after that we are seeing a new government at the state. तो इतना सब कुछ हो चुका है हंगामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक जो भी बोल बच्चन हम लोगों ने किया है, दैट इज़ जस्ट टू बिल्ड द बैकग्राउंड। असली पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रेसिडेंट्स रूल की बात कौन से आर्टिकल में कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 356। देखिए आर्टिकल 356 की जब भी बात होती है ना, यू शुड रिमेंबर अदर टू आर्टिकल्स ऑल्सो। दो आर्टिकल उससे जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 360, और बीच में है आपका आर्टिकल 356। +4 करेंगे तो आ जाएगा, यू कैन रिमेंबर दैट वे। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात होती है। आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी विच इज़ मोर पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल, एंड आर्टिकल 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्लॉज कभी यूज़ नहीं किया गया आज तक इंडिया में। स्टेट इमरजेंसी लगी है ग्रेटर देन 100 टाइम्स, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, इसका बहुत यूज़ हुआ है, या तो कह लें कि मिस यूज़ हुआ है। देन क्या इम्पैक्ट होता है प्रेसिडेंट रूल का? द स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम फेडरल टू यूनिटी। हमारी जो पॉलिटी है कंट्री की वो फेडरल इन नेचर, मतलब आपका एक सेंटर है और फिर उसके बाद में आपका डिवोल्यूशन ऑफ पावर के थ्रू आपके स्टेट्स हैं। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है? बिकॉज 7th शेड्यूल है हमारे पास। 7th शेड्यूल में क्या है? 7th शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। देर आर 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे स्टेट सब्जेक्ट्स जो होते हैं स्टेट लिस्ट में, उस पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो अपने लॉज वगैरह बनाती है। बट प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स ऑल्सो। ओके, एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन? दो आर्टिकल्स में इनकी बात की गई है, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 empowers द प्रेसिडेंट टू इशू अ प्रोक्लेमेशन विद और विदाउट गवर्नर्स रिपोर्ट। तो गवर्नर की जो रिपोर्ट होती है ना, दैट इज नॉट मैंडेटरी, प्रेसिडेंट कैन टेक अ सू मोटो एक्शन ऑल्सो। आर्टिकल 365 is little interesting. When a state fails to comply with or to give effect to any direction from the center, then the center has power to impose president's rule. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था उस समय पे जो डिबेट्स हुआ करते थे, उसमें बी आर अम्बेडकर ने ये प्रपोज किया और उसके बाद में फिर कई सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आए। लोगों ने बोला कि भाई दिस काइंड ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी यू आर गिविंग टू द सेंटर। देन ही सेड कि अभी रिसेंटली मोर देन 560 प्रोविंसेस को आपने मिला के एक कंट्री बनाया है, एक नेशन बनाया है, और हो सकता है कि लोग थोड़ा इधर उधर सोचें और आपका जो नेशनल एस्पिरेशन है दैट में गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो सेंटर के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि सबको एक साथ लेके वो चल सकें। तो दैट इज़ वाई इट वॉज गिवन। बट देन ही ऑल्सो सेड कि दिस विल बी यूज स्पेरिंगली, दिस विल बी अ काइंड ऑफ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बट ऐसा हुआ नहीं, ये बहुत ज़्यादा आगे चल के मिसयूज़ हुआ, उसको भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसका कोई एक्सेप्शन है क्या? हाँ, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज जम्मू एंड कश्मीर, वेयर गवर्नर्स रूल, प्रोविजन ऑफ गवर्नर्स रूल इज़ देयर। वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं होता है, और इट इज़ देयर इन सेक्शन 92 ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सर बोम्बई केस। आई एम जस्ट स्किपिंग दिस पॉइंट बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। देन प्रोसेस क्या होता है प्रेसिडेंट रूल लगाने का, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो गवर्नर की रिपोर्ट आई आपके पास, प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद में प्रेसिडेंट ने मान लीजिए कि डिसाइड किया हाँ चलो लगाना है प्रेसिडेंट रूल, सिचुएशन इज़ बैड, प्रेसिडेंट रूल लग गया। उसके बाद में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, दिस इज द थर्ड स्टेप। पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है, दैट टू विद सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी इज 50%, ग्रेटर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक स्पेशल मेजोरिटी भी होती है जहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, वो जैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। दीज आर द पॉइंट्स विच यूपीएससी विल एनकैश। आपको एक ऑप्शन में आ जाएगा सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी का कुछ ट्विस्ट करके आपको दे देंगे, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए कि सिंपल मेजोरिटी है या स्पेशल मेजोरिटी है। देन इट शुड बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज विद इन 2 months। लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास करना है। अगर लोकसभा उस समय सेशन में नहीं है, बिकॉज लोकसभा पूरे 12 महीने सेशन में नहीं होती है, बट राज्यसभा इज़ अ कंटिन्यूस हाउस, तो राज्यसभा में पास करने से चलेगा। बट लोकसभा जब पहली बार मिलेगी, जब फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट सीटिंग ऑफ लोकसभा, विद इन 1 month दिस हैज़ टू बी पास्ड। ओके, और इसका ड्यूरेशन क्या होता है? इनिशियल ड्यूरेशन इज 6 months, बट दिस कैन गो ऑन फॉर 3 years मैक्सिमम, प्रोवाइडेड यू टेक अप्रूवल आफ्टर एवरी 6 months। ओके, रिवोकेशन होता है बाई प्रेसिडेंट and he does not require any parliamentary approval. Again, this is a important point. He does not require any parliamentary approval for revoking president rule. ठीक है, what are the consequences? जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उसके लिए, उनके लिए कैसे दुनिया बदल जाती है प्रेसिडेंट रूल। हालांकि स्टेट के लिए तो काफ़ी दुनिया बदल जाती है, तो कैसे? प्रेसिडेंट एक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट।
ओके, देन स्टेट असेंबली सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, तो स्टेट असेंबली गई. Then governor on behalf of the president carries out state administration with the help of the chief secretary of the state and the executive machinery. अब अगर आपने स्टेट असेंबली को सस्पेंड या डिसॉल्व कर दिया तो वहाँ सरकार कौन चलाएगी? अभी भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, स्टेट तो चल ही रहा है ना उस तरह से. तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कौन कैरी आउट करेगा? दिस विल बी कैरीड आउट बाय द गवर्नर हु इज एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ही टेक्स केयर ऑफ द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट with the help of the bureaucracy. Then पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट, तो जो स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट के अंडर में आ जाते हैं. इन केस पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लोकसभा सेशन में नहीं है, तो फिर प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंसेस इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ओके, देन इसके आसपास में कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों इतना यूएन क्राई है इसके बारे में? देखिए, आर्टिकल 356 को मोर देन 100 टाइम्स अब तक यूज़ कर लिया गया है सिंस इंडिपेंडेंस, और बहुत ज़्यादा जुडिशियस यूज़ बहुत सारे बार नहीं हुआ है, एंड पीपल हैव अलीजेड लॉट ऑफ टाइम्स दैट दिस इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड. तो दिस इज़ व्हाट द कंट्रोवर्सी इज़. सबसे पहले लगाया गया था ये 1951 में पंजाब में. पंजाब वॉज द फर्स्ट स्टेट इन 1951 टू हैव प्रेसिडेंट्स रूल. जस्ट एज अ साइड नोट, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है क्या? जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है करेंटली, बट पहले नहीं था. कब नहीं था? 1975 में 38th अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अंडर इंदिरा गांधी, जिन्होंने ये पक्का किया कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज सफिशिएंट इन दिस केस एंड दिस कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. दिस वाज द प्रोविजन. बट बाद में 1978 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट लाया, जिसमें उन्होंने बोला कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, इसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. तो इंदिरा गांधी ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ एब्सोल्यूट पावर टू द सेंटर, तो सेंटर की अथॉरिटी को बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, बट यहाँ पे इन्होंने जो हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है 44th अमेंडमेंट में. ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है 1977 में, मुझे याद आया तो मैं भी आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड. 1977 में एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है कि क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है, लोग किस तरह से इसको मिसयूज़ करते हैं प्रोविजन को. 1977 में आफ्टर इमरजेंसी जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी अंडर मोरारजी देसाई. इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी वगैरह लाई थी 1975 में, तो उसके बाद में फिर पॉपुलैरिटी उनकी काफ़ी कम हो गई और कांग्रेस हार गई थी चुनाव और जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई. तो जनता पार्टी ने क्या किया, 9 स्टेट्स जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, ये तो सेंटर में आए थे बट 9 स्टेट्स वर देयर ऑलरेडी जहाँ पे कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वहाँ पे उन्होंने सरकार को बर्खास्त कर दिया और दे ब्रॉट प्रेसिडेंट्स रूल देयर. एंड व्हाट रीज़न दे गेव फॉर दैट, उन्होंने जस्टिफाई इस तरह से किया कि उन्होंने बोला कि इलेक्टोरेट ने तो हमें चुन के भेजा है, कांग्रेस को का तो कॉन्फिडेंस खत्म, मतलब जनता का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया कांग्रेस के ऊपर से. तो अगर सेंटर में हमें चुन के भेजा है तो हाउ डू दे हैव अथॉरिटी टू रूल एनी स्टेट, स्टेट में भी उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. तो ऐसे करके उन्होंने जस्टिफाई किया और 9 स्टेट्स में ये लगा दिया, उन्होंने स्टेट इमरजेंसी लगा दिया. देन ये सरकार ज़्यादा चली नहीं, 3 साल चली और 1980 में फिर से कांग्रेस आ गई. जनरल इलेक्शंस हुए 1980 में, फिर से कांग्रेस आ गई. उन्होंने 9 स्टेट्स जहाँ पे बीजेपी रूल करती थी वहाँ पे उन्होंने यही काम कर दिया. तो सी, इस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते थे ये सारी चीज़ें और लोग अपना पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए इसको बहुत मिसयूज़ कर रहे थे. उसके बाद में कुछ एक डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस. तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसमें से एक था एस आर बॉम्बई केस इन 1994. इन दिस मिस्टर एस आर बॉम्बई ही चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया. ही सेड कि ये जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे के लिए दिया गया है बट आपने बहुत मिसयूज़ किया है इसको. सो ही रिक्वेस्टेड सुप्रीम कोर्ट टू गिव सम गाइडलाइंस so that people cannot imply this, people cannot impose this on their whims and fancies. कुछ एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस होने चाहिए बेस्ड ऑन विच दिस कैन बी इम्पोज्ड. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड. इफ द ग्राउंड्स आर नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द प्रोक्लेमेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, then onus lies on the center to prove the justification exists. I'm just reading out points because there's hardly anything to explain. Court can revive the state legislature if suspended or dissolved. Dissolution of assembly only after parliament's approval. Till then only in suspended state. Then question of state government losing confidence should be decided on the floor of the constitution. This is interesting. जो 1977 वाला आपको जो पॉइंट बताया ना कि उन्होंने अज्यूम कर लिया कि हमें सेंटर में चुन के भेजा है जनता ने, इसका मतलब स्टेट में जो
कांग्रेस की सरकार है, उनको अभी उनमें भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है स्टेट की जनता को। ऐसा नहीं है, वो आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन और उस पर आपको वोटिंग करानी है। उसके बाद में उसके आउटकम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि whether the political party which is ruling the state has lost the confidence of the electorate or not. Okay. Then they said कि secularism is a basic feature, hence state pursuing anti-secular policies is liable for action under Article 356. तो ये वही आर्टिकल, ये कहाँ से आता है? ये आर्टिकल 365 से निकल के आता है। 365 में हमने पढ़ा था ना कि if the state is not able to give effect to any policy which is directed by the center, then center has the authority टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल। तो अगर सेकुलरिज्म से रिलेटेड कुछ डायरेक्शन पास किया गया है एंड स्टेट इज़ नॉट एबल टू गिव इफेक्ट टू दैट डायरेक्शन, देन सेंटर हैज़ पावर टू यूज आर्टिकल 356। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में उतना काफ़ी है, दैट मच इज सफिशिएंट फॉर यू। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ समझने से पहले सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन क्या है। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन, व्हाट इज डिफेक्शन, व्हाट इज एंटी डिफेक्शन। देखिए होता क्या, इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। इफ़ देयर आर टू पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी ए बी सी एंड पार्टी एक्स वाई जेड, ये दोनों इलेक्शन में खड़े हुए हैं और मान लीजिए कि 100 सीट्स हैं टोटल, फॉर सिंप्लिसिटी विल टेक 100। और इलेक्शन का रिजल्ट इस तरह से आता है कि दे गेट 52 सीट्स एंड दीज पीपल गेट 48 सीट्स। किसकी सरकार बनेगी? ए बी सी विल फॉर्म द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ इन मेजोरिटी, मोर देन 50% सीट्स। बट जो भी लोग जीत के आते हैं उस सरकार में, ऑल ऑफ देम आर नॉट गिवन पोर्टफोलियोज। सारे लोग मिनिस्टर नहीं बनते हैं, उनमें से कुछ लोग ही मिनिस्टर बनते हैं और सारे लोगों को अपनी पसंद की मिनिस्ट्री भी नहीं मिलती है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब हो सकता है उसमें से मैं भी एक MP या MLA हूँ, स्टेट लेवल पे MLA, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो व्हाट आई विल डू, दिस अदर ऑपोजिट पार्टी विल ट्राई टू अट्रैक्ट मी। दे विल से कि भाई आप हमारे तरफ आ जाओ, हम आपको मिनिस्टर बनाएंगे। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जंप टू दिस पार्टी। ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं 4-5 लोगों को लेके जाऊँगा यहाँ से। तो मान लो कि मैं 4 लोग उधर लेके चला गया इंक्लूडिंग मी, देन यहाँ पे हो गए 48 और यहाँ पे हो गए आपके 52। अभी ये उल्टा हो गया, राइट। अभी मेजोरिटी में कौन है? XYZ, तो XYZ की सरकार बनेगी, राइट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोला है कि जिसकी मेजोरिटी होगी सरकार उसी की बनेगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो जनता ने जो चुन के भेजा है पार्टी ABC को, that is based on the past performance of ABC, or they are not satisfied with the past performance of XYZ, or on the basis of the election manifesto of the particular party। तो जनता का जो मैंडेट था वो एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में था और 3-4 लोगों ने मिल के उसको उल्टा कर दिया, एंड दिस इज एंटी डेमोक्रेसी। दैट इज़ वाई वी नीड एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अभी आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। देन प्रोविजंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो 10th शेड्यूल में बात की गई है एंटी डिफेक्शन की। ये पहले नहीं था, ये 1985 में लाया गया है। तो इट टॉक्स अबाउट प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इट वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 बाई राजीव गांधी मिनिस्ट्री। इससे पहले ये प्रोविजन नहीं था। दल बदल की जो घटनाएं होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। देन ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन आर समथिंग लाइक दिस: इफ एन इलेक्टेड मेंबर voluntarily gives up his membership of a political party, if an elected member voluntarily if an elected member voluntarily gives up his membership of a political party, if he votes or abstains from voting in such house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission। तो कई बार होता है ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, ठीक है, और पार्टी ने बोला है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, ऑपोजिशन वाले हमारी सरकार गिराना चाहते हैं, दे विल वोट अगेंस्ट अस इन द फेवर ऑफ द नो कॉन्फिडेंस। तो आपको उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट में वोट करना है। और मान लीजिए कोई चुपके से ऑपोजिशन पार्टी के साथ मिल गया और उसने उल्टा वोट कर दिया, तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन हो जाएगा। बट इसका जो फाइनल डिसीजन होगा दैट विल बी टेकन बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस, एंड ये भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो स्पीकर का जो भी डिसीजन होगा। ओके, that's it guys, that's it from my side, and please like, comment and subscribe if you like this video. And one more thing, if you have any topic in mind which you would like us to cover in the coming series, then please let us know through the comments. We will try to take it in account. Thank you all.
Thanks for listening. See you next week. Bye bye.